ایک بار پھر بات کریں گے آئینی ترامیم کے معاملے کی۔ سینٹ اجلاس کے وقت میں پھر تبدیلی کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ کا اجلاس اب شام 7 بجے کے بجائے رات 10 بجے ہوگا۔ سینٹ کے دفاتر اجلاس ختم ہونے تک کھلے رہیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب رات 8 بجے ہونے کا امکان ہے۔ ایسی خبریں اب سامنے آ رہی ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی اب تک نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ دوسری جانب ہم آپ کو جس طریقے سے دکھا رہے ہیں کہ رہائش گاہ مولانا فضل الرحمان کی، وہاں پر اب ہائی لیول ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس کا سلسلہ جاری ہے، مزید ملاقاتوں کی بھی توقع کی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں ہم دوسری جانب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس اب شام 7 بجے کے بجائے رات 10 بجے ہوگا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ کے دفاتر اجلاس ختم ہونے تک کھلے رہیں گے، جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی مزید تاخیر کا شکار ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب رات 8 بجے ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی اب تک نہیں ہو سکا ہے، ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ سینٹ اجلاس کے وقت میں پھر تبدیلی کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ کا اجلاس اب شام 7 کے بجائے رات 10 بجے ہوگا، جبکہ قومی اسمبلی کی اگر بات کریں تو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب رات 8 بجے ہونے کا امکان ہے۔ تو اب تک ملاقاتوں میں اور جو مشاورت جاری ہے، اور اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو اعتراضات رکھے گئے ہیں وہ اب تک دور نہیں کیے جا سکے، اور ابھی پی ٹی آئی وفد بھی ملاقات کے لیے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچا، ان سے ملاقات کی۔ بہت ڈیٹیلڈ یہ ملاقات ہوئی ہے جو کہ اب ختم ہو چکی ہے، اور وفد بھی وہاں سے روانہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو سکا ہے، اور یوں کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ابھی تک مولانا کی جانب سے بھی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی ہے، اور اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم اور ساتھ میں نواز شریف بھی، جبکہ بلاول بھٹو زرداری بھی ملاقات کے لیے پہنچ سکتے ہیں، اور صدر مملکت کے بارے میں بھی اطلاعات یہی ہے۔ تو اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترامیم کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کیا ہے۔ مجوزہ آئینی ترامیم میں 20 سے زائد شقیں شامل کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ آئینی ترامیم میں آئین کی شقیں ہیں 63، 51، 175، 187 شامل کی گئی ہیں۔ جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کی آسانی کے لیے بتائیں کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترامیم بھی شامل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آئینی عدالت کے فیصلے پر اپیل آئینی عدالت میں سنی جائے گی۔ آئین کے آرٹیکل 181 میں بھی ترمیم کیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آئینی عدالت میں آرٹیکل 186، 85، 84 سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوگی، which is very important۔ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ خصوصی پارلیمانی پارٹی میں توسیع اور سینٹ اراکین بھی 5 کمیٹی کے 5 اراکین شامل ہو گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ANNP کا ایک سینیٹر کمیٹی میں شامل ہوا ہے۔ خصوصی کمیٹی میں تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز کو شامل کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں عرفان صدیقی اور شہری رحمان شامل ہے۔ شبلی فراز، علی ظفر اور عمر فاروق بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ بہزاد سلیمی، ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہزاد صاحب، انتہائی اہم کمیٹی جس میں بہت سارے اہم چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اہم ڈیٹیل ہے؟ جی، خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں سینٹ کی نمائندگی بھی دے دی گئی ہے، اور چیئرمین سینٹ نے اسپیکر کی قائم کردہ کمیٹی کے لیے 5 سینیٹرز نامزد کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے سینٹ سیکریٹریٹ نے باضابطہ طور پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نامزد کیے گئے ارکان میں حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے ارکان شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر عرفان صدیقی، پیپلز پارٹی کی شہری رحمان، ANP کے سینیٹر عمر فاروق، قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز اور سینیٹر علی ظفر جو ہیں ان کو خصوصی کمیٹی کے لیے نامزد کیا گیا ہے، اور اس فیصلے سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ بالکل، یہ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی میں اتفاق رائے کے بعد مسودے کو حتمی شکل دی جانی ہے، اور ایسے میں خصوصی پارلیمانی پارٹی میں توسیع کی گئی ہے۔ سینٹ کے 5 ارکان بھی اس کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں۔ بہزاد سلیمی ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے قبل ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آئینی ترامیم کے اس معاملے میں سینٹ اجلاس کے وقت میں بھی پھر تبدیلی کی گئی ہے، اور جو سینٹ کا اجلاس ہے وہ اب شام 7 کے بجائے رات 10 بجے ہوگا، جبکہ سینٹ کے جو دفاتر ہیں وہ بھی اجلاس ختم ہونے تک کھلے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کا بھی اجلاس تاخیر کا شکار ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اب رات 8 بجے ہونے کا امکان ہے۔ تو اپنے ناظرین کو یہاں پر بتائیں کہ اس آئینی ترامیم کے معاملے پر ملاقاتیں بھی جاری ہیں، مشاورت بھی ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر مسلسل ہم دیکھتے ہیں کبھی حکومت کی جانب سے کوئی وفد پہنچتا ہے یا اپوزیشن کی جانب سے وفد پہنچتا ہے، لیکن اب تک کوئی بھی بریک تھرو نہیں ہو سکا ہے۔ کچھ ایسی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کیا انہوں نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے، وہ مطمئن ہو گئے ہیں، یا ان کو اب بھی تحفظات ہیں، ان کے تحفظات اب تک دور نہیں ہوئے ہیں۔ اس پر اب تک کوئی خبر سامنے
नहीं आई है। और यही बताया जा रहा है कि ये मुलाकातों का सिलसिला अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि हाई लेवल मुलाकातें अब शुरू हो चुकी हैं। जब पीटीआई का वफ्द वहां पर पहुंचा है तो दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इस वक्त इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वजीर आजम और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे उनसे मुलाकात के लिए और उनको मनाने की कोशिश करें, क्योंकि नंबर गेम की ये बात है और जब तक ये नंबर गेम पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये तमाम 2/3 अक्सरियत हुकूमत हासिल नहीं कर लेती, जब तक इजलास भी नहीं होगा, इसीलिए इसका इंतजार किया जा रहा है और यही कोशिशें की जा रही हैं कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। और जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से बहुत सारी शिकों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये मुतनाज़ शिकें हैं, लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान को वो भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके साथ मिल जाएं और इन आइनी तरामीम की तरफ ना जाएं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत जो हुकूमती वफ्द है वो ये भरपूर कोशिश कर रहा है कि मौलाना फजल रहमान के जो 8 वोट्स हैं वो शामिल हो जाएं ताकि 2/3 अक्सरियत हुकूमत को मिल जाए और ये बिल पास कराया जा सके नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और ऐसी सूरत हाल में हम साथ में आपको ये भी खबर दे रहे हैं कि नेशनल पार्टी का आईनी कोर्ट के क़याम से मुतालिक आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान भी सामने आया है। कुछ आईनी तरमीम पर हुकूमत की नेशनल पार्टी से मुशावरत भी हुई है। आपको बताएं जिन आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई है नेशनल पार्टी उन पर हुकूमत का साथ देगी। सेनेटर जान बुलेदी की जानिब से ऐसा बताया गया है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन के दो अराकीन शामिल होंगे। तो यहां हम खबर आपको दे रहे हैं, इस हवाले से बताएं कि नेशनल पार्टी का आईनी कोर्ट के क़याम से मुतालिक आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान सामने आ गया है। सेनेटर जान बुलेदी ये कहते हैं कि कुछ आईनी तरमीम पर हुकूमत की नेशनल पार्टी से मुशावरत हुई है, जबकि जिन आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई है नेशनल पार्टी उन पर हुकूमत का साथ देगी। तो हुकूमत का साथ देने के हवाले से ये हम देख रहे हैं कि हिमायत का ऐलान सामने आ गया है। और सेनेटर जान बुलेदी की जानिब से यह भी कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन के दो अराकीन शामिल होंगे। शहजाद अली से इस पर हम तफसील जान लेते हैं। शहजाद अली, आप ये भी बताइएगा, फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं, अब वहां पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या माहौल बनता देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह के माहौल बाहर जो माहौल है वो जू का तू है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर कबल जो पीटीआई का वफ्द यहाँ पर पहुँचा था उन्होंने जो है वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर मौलाना फजल रहमान की इमामत में जो है वो नमाज मगरिब अदा की है। नमाज मगरिब के बाद जो चेयरमैन पीटीआई थे बैरिस्टर गौहर, इसके साथ साथ जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, शिबली फराज और असद कैसर की जो है वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह के अंदर मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा है वो भी मौजूद है। वो बैरिस्टर गौहर के साथ उन्हीं की गाड़ी में यहाँ पर मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचे थे। तो इस वक्त जो है वो अपोजिशन की पार्टियां मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से मौलाना फजल रहमान को अपने साथ बिठाने में कामयाब हों। इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह के अंदर जो है वो अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इससे कबल जो तहरीक इंसाफ से कबल यहाँ पर जो साबिक जो है असाक डार वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनके साथ जो है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी थे और वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ थे जो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने मौलाना फजल रहमान को जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पैकेज का जो ड्राफ्ट है, ज़रा ये बताते हैं कि वो मौलाना फजल रहमान के सामने रखा गया और कोशिश की गई कि मौलाना फजल रहमान को जो ड्राफ्ट है वो इत्मीनान में लिया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ पर स्टिल डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि जो मुतनाज़ा शिके हैं इस ड्राफ्ट के बिल के अंदर उन्हें जो है वो निकाला जाए, उसके बाद जो है वो हुकूमत की हिमायत के बारे में सोचा जा सकता है। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान ने जो हुकूमती वफ्द यहाँ पर पहुंचा था उसे ये कहा कि इस मामले पर ये इंतहाई अहमियत का मामला है, इस पर जो है वो शिक वाइज जो है वो बहस का मौका देना चाहिए और तमाम चीज़ों को जो है वो मशावरत के बाद फाइनलाइज करना चाहिए। लेकिन हुकूमत इस हवाले से थोड़ी जो है वो जल्दी में नजर आ रही है। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने जो हुकूमती वफ्द यहाँ पर पहुंचा था उसे भी इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि इस मामले में जो है वो जल्दबाजी ना की जाए और इस मामले पर जो है वो तवील मुशावरत के बाद जो है वो तमाम सियासी जो जमातें हैं उनको भी जो है वो इत्मीनान में लिया जाए। तो उसके बाद जो है वो JUI भी जो है वो हुकूमत की सपोर्ट का जो है वो फैसला कर सकती है। तो इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान का जो मौक़िफ़ था वो लेकर जो 3 रुकनी हुकूमती वफ़द था वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास पहुंचा है और मौलाना की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल के हवाले से वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ का वफ़द पहुंचा और इस वक्त जो है वो तहरीक
तहरीक इंसाफ के वफ्द की जो है वो मौलाना से मुलाकात जारी है। तो अब दिखाई ये दे रहा है कि शायद अब ये डिसाइसिव मोड पर जो सिचुएशन पहुंच चुकी है और इसके बाद जैसे कि आप बता रहे हैं कि डिसाइसिव मोमेंट अब हो सकता है और अब कुछ फैसला भी सामने आ सकता है मौलाना फजल रहमान की जानिब से, क्योंकि अब वो यही चाह रहे हैं कि तवील मुशावरत हो, उसके बाद तमाम सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाए। नैयर, आपकी जानिब में आऊंगा और जो खबरें आ रही हैं उस्मान भी जिस हवाले से हमें बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नवाज शरीफ भी हो सकते हैं जब रिहाइशगाह पहुंचा जाएगा और ये हाई लेवल मुलाकात की जाएगी मौलाना फजल रहमान के साथ। तो आप क्या समझती हैं ये कितनी मुख्तलिफ मुलाकात होगी मौलाना फजल रहमान के साथ अगर नवाज शरीफ उनके हमरा होंगे? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जो है वो इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है और जिस तरह से मौलाना को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं और बॉल जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो फेंकी जा रही है, इससे अंदाजा यही होता है कि जो ही जो है वो शायद मौलाना जो है वो इस इंतजार में है कि अगर शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम हैं, उनके हमरा नवाज शरीफ जो कि पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो अगर वहां पर जाते हैं। और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद आसिफ अली जरदारी जो कि सदर पाकिस्तान है वो भी शायद जा सकते हैं अगर मामला जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होता तो। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक अहम तरीन डेवलपमेंट से जरूर आगाह करना चाहूंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो अब से कोई 1.5-2 घंटे पहले जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात के लिए और फ्रेश होने के लिए जो है वो ऐवान सदर चले गए थे, तो अब वो वहां से वापस जो है वो पहुंच चुके हैं। और इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान के साथ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, और वो अटॉर्नी जनरल जो है उनके चैम्बर में इस वक्त उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आईनी तरमीम के हवाले से कुछ क्यूरीज हैं जिनके ऊपर बात हो रही है, डू और डोंट की बात हो रही है, क्योंकि आईनी मुसव्विदा जो है अब अगर जो पार्टीज हैं उनकी बात सुनी जाती है तो अब उसके अंदर यकीनी तौर पर तरमीम की जरूरत जो है वो पेश आएगी। तो इस वक्त अटॉर्नी जनरल का बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में पहुंचना और मुलाकात करना जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। दूसरी तरफ जो है वो जो खुसूसी कमेटी का इजलास है वो भी जो है वो अभी मखमसे का शिकार है। अब से कुछ देर कबल हमारे जराये ने ये बताया कि वो इजलास जो कि हमने अपने नाज़रीन को जिस हवाले से आगाह किया था कि उसके लिए लोग अब पहुंचना शुरू हो गए हैं और 5:30 बजे होना था, अब उसके बारे में इत्तलात आ रही हैं कि वो ताख़ीर का शिकार है। उसकी वजह यह है कि 1 घंटे तक जो अरकान हैं वो बैठे रहे, वो इंतजार करते रहे और यहाँ पर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इजलास शुरू नहीं हो पाया। और इजलास शुरू ना होने की वजह से यहाँ पर जो मेंबरान थे उनमें गमो गुस्सा भी पाया जा रहा था कि जब तक मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मसरूफ हैं तब तक ये इजलास बाज़ाब्ता तौर पर शुरू नहीं हो सकता, जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी वापस नहीं पहुंचते बाज़ाब्ता तौर पर शुरू नहीं हो सकता। तो मेंबरान की जानिब से कहा जा रहा था कि अगर ऐसा था तो फिर हमें बता दिया जाए जो वक्त रखना है ताकि हम उस वक्त आ जाएं। तो हमारे जराये को ये बताना है कि अंदर कमेटी इजलास में गम गुस्से का इजहार किया गया, उसके बाद 1 घंटा तक गैर रस्मी एक दूसरे के साथ गपशप करते रहे, बाज़ाब्ता इजलास शुरू नहीं हो पाया और फिर उसके बाद जो है वो मेंबरान कोई नमाज के लिए और कुछ खाने के लिए कहकर वहां से उठ गया है। तो अब ये कमेटी का जो इजलास है इसके लिए एक बार फिर जो है वो सब मेंबरान को इकट्ठा किया जाएगा, खुसूसी कमेटी में जो है वो ब्रीफ किया जाएगा। उसके बाद अगला मरहला जो है वो काबीना का इजलास है जो कि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस काबीना के इजलास में मंजूरी के बगैर ये आईनी तरमीम जो है ये ऐवान में ले नहीं की जा सकती। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं और उसी हिसाब से सेनेट का इजलास जो है जो कि पहले ही ताखीर का शिकार था, अब उसका टाइम जो है वो 10:30 बजे के करीब बताया जा रहा है। तो यूं जो है वो मुसलसल खुद से जो है आईनी तरमीम के मामले पर जो है वो वक्त आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? जब हमने यहाँ पर मौजूद अरकान पार्लियामेंट से ये जानने की कोशिश की तो गैर रस्मी तौर पर उनका ये कहना था कि क्योंकि बर वक्त जो है इस हवाले से मुशावरत नहीं की गई आईनी तरमीम के हवाले से, और ऐन वक्त पे जब जरूरत है इस अमर की कि अब जो है ये आईनी तरमीम करनी है तो उस वक्त मुशावरती अमल, उस वक्त वो आइन और कानून समझाने की जो है वो अरकान को कोशिश की जा रही है। तो इतने मुख्तसर वक्त में आइन और कानून जो है वो अरकान को नहीं समझाया जा सकता। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जब हमने बात की है तो हमारे जराये का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बुनियादी जो आईनी तरमीम है उसकी हद तक तो मानते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि उसके अलावा बाकी जो पैकेज में मजीद जो है वो कई तरमीम, कोई 14 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है और कोई 22 तक की फिगर इस वक्त आ रही है। तो ये जो तरमीम है इनको इस एजेंडे से
आप निकालें और उसके ऊपर पहले मुशावरत करें, पहले बात करें और फिर इनको लेकर आएं, फिर इनको ले करें। वरना आप खसूसी कमेटी के इजलास में आधे घंटे में कितना एक लोगों को समझा लेंगे और कितना एक बात कर लेंगे। तो वो अपनी जगह जो है वो अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि वजीर आजम और जो नवाज शरीफ है उनकी जानिब से, वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों की जानिब से जो है ये इंडिया दिया गया था कुछ देर कबल कि शायद वो जो है वो मौलाना से मुलाकात के लिए उनकी तरफ जा सकते हैं। अगर मामलात जो है यही बचती है कि खुद वजीर आजम और खुद जो है मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं, जो कायद है मुस्लिम लीग नून के, जो कि मुस्लिम लीग नून को लीड कर रहे हैं, वो खुद जाएं और मौलाना को मनाएं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जराए से भी ये खबरें थी कि आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो जाएंगे। साथ